کہ کراچی شہر کو محفوظ بنانے کے لیے اجلاس کی اندرونی کہانی سٹی 21 اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے مختلف اشیاء کی قیمتوں پر اختلاف، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ NRTC کے ریٹ سے متفق نہیں۔ تفصیلات جانیں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، آج وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا سیف سٹی پروجیکٹ پر۔ یہ ویسے بہت پرانا پروجیکٹ ہے، 48 ارب روپے کا، لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ 10,000 سے زائد کیمرے اور دیگر آلات خرید کرنے ہیں۔ آج کے اجلاس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ جو ادارہ ہے NRTC جس کو یہ کیمرے لگانے ہیں، اس میں اور جو سندھ کا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں شدید اختلافات ہیں، ریٹ پر اختلافات ہیں، اور 84 ملین روپے جو سافٹ ویئر سے اور دیگر سے NRTC نے مانگے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اختلاف کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا تھا کہ یہ ریٹ کم کریں۔ تو اب یہ طے یہ ہوا ہے کہ تمام کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے۔ اگر کم نہیں کیے جا رہے ہیں تو پھر سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی، اور آج کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ریٹ وغیرہ ہوئے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنائی گئی ہے سیکریٹری داخلہ اقبال میمن کی زیر صدارت میں۔ یہ کمیٹی مختلف یونیورسٹی سے ماہرین کو اپنے ساتھ رکھے گی اور پھر اثر نو جائزہ لے گی جو ریٹ دیے گئے ہیں، جس میں کمپیوٹر ہیں، جس میں کیمراز ہیں، سافٹ ویئر کی خریداری کا معاملہ ہے، پول ہے اور دیگر تمام سیفٹی پروجیکٹ کے جو آلات ہیں۔ اس حوالے سے یہ مذکورہ کمیٹی جائزہ لے گی۔ 15 دن میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ٹھیک ہے، عاجز جمالی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ بیورو چیف فہیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ نگراں وزیر اعلیٰ اور محکمہ P&D پروجیکٹ کی قیمتوں پر کیا تحفظات ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج یہ انتہائی اہم اجلاس کیا ہے سیفٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، اور اس اجلاس میں جو اہم ترین بات تھی اور جو کافی دن سے ہم یہ سن رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کو NRTC کی جانب سے جو ریٹس کوٹ کیے گئے ہیں ان پر بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور وہ اسی لیے جو ہے اس پروجیکٹ کی منظوری نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے اس کی اصولی منظوری تو یہ کہہ کر دے دی ہے کہ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ڈالر کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ہے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ یہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے، یہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے اس بات کو دیکھے گی کہ یہ جو ریٹ NRTC کی جانب سے دیے گئے ہیں یہ ریٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو آج سامنے آئی جس کے اوپر خود وزیر اعلیٰ نے ایک چیز کو جو ہے وہ پوچھتے رہے، ایک چیز کی قیمت کو NRTC کے نمائندوں سے پوچھتے رہے، اور جب ایک ایسا سافٹ ویئر سامنے آیا جو ویڈیو انہانسنگ سافٹ ویئر تھا، اس کی قیمت کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ 84 ملین روپے اس ایک سافٹ ویئر کی خریداری کے لیے اس پروجیکٹ میں رکھے گئے تھے، جس پر وزیر اعلیٰ نے اسے انتہائی غیر معقول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے، اور پھر جب وزیر اعلیٰ کی جانب سے مستقل اعتراضات اٹھائے جاتے رہے تو یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ NRTC کی جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ریٹ زیادہ ہیں اور انہیں کم کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے آج اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی جو بنائی ہے وزیر داخلہ کی سربراہی سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں بنائی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے نہ صرف یہ کہ PC1 میں سے ایک ہی سامان جو کئی بار خریدا جانا لکھا گیا ہے وہ نکالے گی، اور ساتھ ہی جو وہ سامان شامل ہی نہیں ہے وہ سامان جو ہے وہ شامل کرے گی۔ تو NRTC کو یہ کہہ دیا ہے ان کی جانب سے، وزیر اعلیٰ ان کی جانب سے، کہ P&D کے جو چیئرمین ہیں وہ NRTC سے ملاقاتیں جاری رکھیں اور جو سیفٹی کے مختلف سامان کی قیمتوں پر ان سے بات چیت جاری رکھی جائے۔ اجلاس میں یہ بھی بات ہوا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ NRTC سے قیمتوں پر بات نہ بنے تو سول ورک کو کم از کم شروع کر دیا جائے، جو آپٹیکل فائبر بچھائی جانی ہے شہر میں اور جو پولز لگانے ہیں جن پر کیمرے نصب ہوں گے وہ لگانے کا کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ تو یہ بڑی خبر ہے جو ہم ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں کہ سٹی 21 اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آ رہا ہے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے جو آج اجلاس ہوا ہے سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اس میں مختلف اشیاء کی قیمتوں کے اوپر جو شدید اختلاف پایا گیا ہے محکمہ P&D اور NRTC کی جانب سے۔ NRTC وہ کمپنی ہے جس نے اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ بڈ کی ہے اور انہوں نے یہ ریٹ دیے ہیں کہ اس میں کون کون سی اشیاء جو ہے وہ کتنی لگیں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے ریٹ سے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ریٹ دیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر اس میں مزید تاخیر کی جاتی ہے تو یہ پروجیکٹ مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس کی اصولی منظوری تو دی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بہت زیادہ جو انہوں نے کنسرن شو کیا ہے ان ریٹ کے اوپر جو NRTC کی جانب سے کوٹ کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو ویڈیو انہانسنگ سافٹ ویئر ہے اس کے لیے 84 ملین روپے کی رقم کو انہوں نے ایک غیر معقول رقم قرار دیا ہے۔
कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ थे। आजिज़ जमाली भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत पर तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर्स को दे दिया गया। कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर कराची सलीम राजपूत को दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर की हिदायत पर तालीमी बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर कराची को दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने सक्खर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन के चार्ज कमिश्नर सक्खर फयाज अब्बासी को दिया है। इसी तरह कराची बोर्ड इंटरमीडिएट के चेयरमैन की चार्ज कमिश्नर कराची सलीम राजपूत को दे दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची 23 नवंबर 2023 से खाली थी के बाद आज जो है वो ये फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से के चार्जेस जो हैं वो कमिश्नरान को दे दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नरान को तालीमी बोर्ड की फौरी चार्ज लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भिजवाने की हिदायत भी की गई है। आयमा खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर कराची सलीम राजपूत को दे दिया गया है। जी हाँ, ये आज ये फैसला हुआ है कि जो बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन ना होने की वजह से बोर्ड के मामलात ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से सिंध के निगरान वज़ीर आला ने जो इंटरमीडिएट बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन का अख्तियार आर्जी तौर पे कमिश्नर को दे दिया है। कमिश्नर कराची को कराची बोर्ड का चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद हैं, उनको अख्तियार दिया गया है। इस तरह जितने भी बोर्ड्स हैं उनके जो चेयरमैन हैं उनकी जगह पे अब जो कमिश्नर हैं वो बोर्ड का इंतज़ाम संभालेंगे और इनको ये अख्तियार दिया गया है। आज 3 यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वज़ीर आला सिंध के इस फैसले के बाद, जिसके तहत सक्खर बोर्ड का जो चेयरमैन है रफ़ीकुल, वो चूँकि रिटायर हो गया था, इस वजह से कमिश्नर सक्खर को ये चार्ज दिया गया है। कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैन की सीट खाली थी, इस जगह पे कमिश्नर कराची सलीम राजपूत को चेयरमैन का अख्तियार दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। शहीद बेनज़ीराबाद का चेयरमैन जो है सक्खर यूनिवर्सिटी के उसके पास आर्जी चार्ज था, आज कमिश्नर को का चार्ज कमिश्नर नवाब शाह के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह ये फिलहाल तीनों बोर्ड के चेयरमैन जो है कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे, आयमा खान भी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। एसएसपी सिटी अमजद हयात को एसएसपी साउथ का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एडिशनल आईजी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अपडेट करते चलें आपको कि एसएसपी सिटी अमजद हयात को एसएसपी साउथ का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। एडिशनल आईजी ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताएगा फिलफोर चार्ज संभालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी सिटी अमजद हयात को जो है वो एसएसपी साउथ का इजाफी चार्ज जो है वो दे दिया गया है। एसएसपी साउथ की सीट पर अभी कोई अफसर मौजूद नहीं था जिस पर जो है वो एसएसपी सिटी को चार्ज दिया गया है। एसएसपी सिटी अमजद हयात जो है वो एसएसपी सिटी की अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ जो है वो एसएसपी साउथ की ड्यूटीज़ भी जो है वो संभालेंगे। एडिशनल आईजी कराची खातिम हुसैन ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जब तक कोई नया ऑफिसर तैनात नहीं हो जाता एसएसपी साउथ का, तब तक जो है वो एसएसपी सिटी अपनी इजाफी चार्ज को जो है वो संभालेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। अब आपको बताएं कि पहली बीवी के होते दूसरी शादी शौहर को महंगी पड़ गई। पहली बीवी से धोखे ने शौहर को जेल पहुंचा दिया। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। दूसरी शादी का शौक शहरी को कैद कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने दूसरी शादी पर शौहर को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। मुद्दइया के वकील सलीम माइकल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शौहर निकाह पर निकाह नहीं कर सकता। मुलजिम ने शादीशुदा होकर दूसरी शादी की, जो गैर कानूनी अमल है। इसी केस में 494 में जो अक्यूज था उसने दूसरी शादी की, पहली बीवी की मौजूदगी में एस्टर की, और उस पर फिर 213 पे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अदालत में सजाद अली जमाली साहब की अदालत में ये फैसला हुआ है और मुजरिम को यानी जिसने दूसरी शादी की उसको 3 साल सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया है।
मुलजिम जोशुआ के खिलाफ महमूदाबाद थाने में पहली बीवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म पहली बीवी की दरख्वास्त पर अदालत ने दिया था। कैमरामैन कयूम के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। कराची बार के सालाना इंतखाबात में मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 48 उम्मीदवार मैदान में आ गए। मैनेजिंग कमेटी की सीट के उम्मीदवार अदनान फारूक मेहर कहते हैं, हाई कोर्ट में भी हमारा उम्मीदवार जीता था, यहाँ भी फतह हासिल करेंगे। जावाद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। कराची बार के सालाना इंतखाबात में 5 रोज बाकी, सिटी कोर्ट में इलेक्शन की तैयारियों में तेजी। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर 48 उम्मीदवारों ने नजर जमाली। डिफेंडर्स लॉयर फोरम की जानिब से अदनान फारूक मेहर इंतखाब लड़ रहे हैं। इनका सीरियल नंबर 8 है। जीत के लिए पुरजोश अदनान फारूक कहते हैं, उनका हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीता था। उम्मीद है वो यहाँ से फतह का ताज अपने सर पर सजाएंगे। अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, विन करते हैं। अभी भी रिसेंटली हमने हाई कोर्ट के अंदर अपना इलेक्शन किया, 24 नंबर हमारा था, वो विन हुआ। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इस कराची बार के इलेक्शन में भी हम सीरियल नंबर 8 पर विन करेंगे। अदनान फारूक और उनकी टीम इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है। वो पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स के जरिए वकला की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रहे हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 75 पैसे पर बरकरार है। डीलर्स के मुताबिक हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे कमी से 283 रुपये 75 पैसे तक ट्रेड हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज में डॉलर 284 रुपये 75 पैसे पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये इजाफे से 308 रुपये, बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 359 रुपये का हो गया। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में नवंबर 2023 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 11,146 अकाउंट्स खोले और नवंबर 2023 में आरडीए में 13 करोड़ 70 लाख डॉलर डिपॉजिट हुए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट में जो डिपॉजिट का जो है वो डाटा जारी किया है, जिसमें कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी का एतमाद जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट पर जारी है। और नवंबर 2023 में मजबूरी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ने 11,146 अकाउंट खोले, जिससे जो है अब तक जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में जो अकाउंट की तादाद जो है 6,40,885 हो चुकी है। और यहाँ देखा जाए नवंबर 2023 में रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान की जानिब से 13 करोड़ 70 लाख डॉलर डिपॉजिट हुए और सितंबर 2020 से अब तक जो है देखा जाए रोशन डिजिटल अकाउंट में 7 अरब 3 करोड़ 50 लाख डॉलर के डिपॉजिट हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। IMF फंड्स मिलने की ताख़ीर और शरह सूद बरकरार रखने की खबरें। स्टॉक एक्सचेंज गुज़श्ता हफ्ते तेज़ी के बाद मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। सरमाकार शेयर्स की फरोख्त करके मुनाफे के हसूल में सरगर्म रहे। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। आप देखें पिछला पूरा महीना, तो पूरे महीने में मार्केट अपवर्ड पहले 50 को क्रॉस किया, फिर 60 को, फिर 62, 63, 64, वो तो एक दिनों में होते गए। तो अब मार्केट ने तो हम थोड़ा सा ब्रीदर लेगी और करेक्शन पीरियड शुरू हुआ है, क्योंकि आप हर वक्त हर क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो, वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा और ये प्रॉफिट टेकिंग भी हेल्दी साइन होती है किसी कैपिटल मार्केट के लिए। शहर में पार्किंग माफिया को लगाम देने के लिए ताजिर बरादरी ने मुतालबात पेश कर दिए। पूरे शहर में पार्किंग फीस यकसा मुकर्रर करने का मुतालबा। सदर ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कहते हैं स्टेक होल्डर्स को शामिल करके कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज, ताजिर बरादरी का बड़ा मुतालबा। रोशनियों के शहर में पार्किंग माफिया से तंग ताजिर बोल उठे। सदर ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हुसैन कुरैशी ने मुतालबा किया कि शहर भर में पार्किंग फीस यकसा वसूल की जाए। स्टेक होल्डर्स को शामिल करके कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनाई जाए ताकि माफिया को कंट्रोल किया जा सके। उसका एक तरीकाकार है, अगर एक सिस्टम बनाने पे हुकूमत आए तो कमिश्नर कराची की सरबराही में पहले भी एक मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बना था जिसमें मुख्तलिफ इदारे मौजूद थे, और मैं ये कहता हूँ कि उसको फ़ाल करके ताजिरों को भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए। हुसैन कुरैशी ने शिकवा किया कि पार्किंग माफिया की मनमानी उरूज पर पहुंच गई। 50 से 100 रुपए तक पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। मौसर निजाम न होने से मार्केटों के बाहर पार्किंग मजबूरी है क्योंकि मुतबादिल ही मौजूद नहीं। ये जो पार्किंग माफिया है
अपनी मनमानी किस तरीके से करती है, कहीं 50 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं 20 रुपये लिए जा रहे हैं, कोई एक फ़िक्स नहीं है। और हमने देखा 100 रुपये तक ये कीमतें मुख्तलिफ एरियाज़ और जगहों को देख के वहाँ से वसूल की जाती हैं। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि शहर में पार्किंग का मौसर निज़ाम वाज़ा किया जाए ताकि शहरी सुकून के साथ बगैर गैर कानूनी चार्ज अदा किए खरीदारी कर सके। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कि निगरान सिंध हुकूमत समंदर के पानी को मीठा करने के मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक हो गई। निगरान वज़ीर सेहत का मनोड़ा के जजीरे पर खारे पानी को मीठा करके प्लांट का दौरा, प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने का मंसूबा। मनोड़ा के जजीरे पर पीने के पानी की फराहमी के लिए वज़ीर सेहत सिंध मैदान में आ गए। साद खालिद न्याजी ने खारे पानी को मीठा करने के प्लांट्स के मुआयने के दौरान इसकी इस्तेदाद और सलाहियत पर इजहार ख्याल किया। वाटर डिसलिनेशन प्लांट की तनसीब से हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल मनोड़ा आइलैंड और मुल्हिका आबादी को पीने का पानी मुयस्सर आएगा। निगरान वज़ीर सेहत का कहना है कि 2016 में प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था, लेकिन ताहाल इसे मुकम्मल नहीं किया गया। उम्मीद है प्रोजेक्ट की जल्द तकमील से आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। 2016 में ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कमीशन हुआ था और 2016 से ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ मरहल में ज़्यादातर टाइम पे प्रॉपर कंप्लीशन की तरफ नहीं गया। इस इलाके में पानी का बड़ा मसला है, अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है और उसके लिए ये प्लांट तकरीबन 500,000 गैलन पर डे का था, जिससे कि ज़ाहिर है आबादी को बहुत फ़ायदा हो जाता है और ज़रूरी भी है यहाँ पे होने का। कराची के जजीरों पर बसने वालों को साफ पानी की फराहमी के इक़दाम को शहरियों ने खुश आइन करार दिया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ आयमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि महंगाई की नई लहर गुड़ की मिठास भी कम करने लगी। गुड़ की फ़ी किलो कीमत में 45 रुपये किलो तक इजाफा हो गया। कीमत बढ़ने के बाद गुड़ की 50 किलो की बोरी 2000 रुपये तक महंगी हो गई। डीलर्स ने कीमत बढ़ने की वजह महंगाई को करार दिया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने गुड़ की मिठास भी छीन ली। फी किलो गुड़ 45 रुपये जबकि 50 किलो की बोरी 2000 इजाफे से 8250 की हो गई। पिशावरी गुड़ 125 से बढ़कर 170 रुपये और पंजाब का गुड़ 110 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो पर पहुंच गया। डीलर्स ने गुड़ की कीमतों में इजाफे की वजह महंगाई को करार दिया। कहा कि मौसम सरमा में गुड़ की तलब के साथ खाद और गन्ने की कीमत में इजाफा गुड़ महंगा होने का सबब बना। इस साल जो महंगाई की रफ्तार बढ़ी है तो इस वजह से गुड़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जैसे अभी फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, गन्ने का रेट ऊपर हो गया, 100-200 रुपये मन ऊपर हो गया, तो इस वजह से गुड़ की कीमतों में भी 40-50 रुपये का फ़र्क आया है। जो पंजाब का गुड़ था वो 110 था पिछले साल, अभी 150 रुपये चल रहा है। और जो पिशावरी गुड़ है वो था पिछले साल 125 समथिंग था और अभी जो है 170 रुपये चल रहा है पिशावरी गुड़, तो 30-40 रुपये किलो में फ़र्क आया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गुड़ की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। आवाम को रिलीफ तो जब ही देगी जब वो खाद सस्ती करेगी। खाद सस्ती होगी तो ये सब सस्ता होगा, जब खाद ही महंगी होगी तो इसमें हमारा कुछ भी। गुड़ की मिठास उसी वक्त वापस आ सकती है जब हुकूमत महंगाई की शरह में इजाफा करने वाले अवामिल पर काबू पा सके। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने यूनियन कमेटी नंबर 10 में इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बनाए गए कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी नौजवानों को सहूलियात की फराहमी के फ़लसफ़े पर काम कर रही है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कल की कचरा घुंडी आज का खूबसूरत इंडोर स्पोर्ट्स कोर्ट यूसी10 में मुनफरिद मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का कहना है कि माजी में खेल के मैदान कहीं चाइना कटिंग की नजर हुए तो कहीं कचरा कुंडी बना दिए गए। हम इन्हें आबाद कर रहे हैं। आपको पता है इस कोरंगी के अंदर ज़्यादातर ग्राउंड पे कब्जा होके आबादियाँ बन चुकी हैं जो पिछले अदवार में हुई हैं। तो हमने फिर लोग परेशान थे, नौजवान आजकल का परेशान था कि हम अपनी एक्टिविटी कहाँ रखें खेलों की। तो हमने फिर एक प्लान किया, हमने दोस्तों के साथ मशवरा किया, तो हमने फिर इंडोर एक स्पोर्ट्स कोर्ट का हमने डिज़ाइन किया कि हमने यहाँ बनाना चाहिए। खातून काउंसलर और जिम्मेदारान ने स्पोर्ट्स कोर्ट को पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कोरंगी के नौजवानों के लिए तोहफा करार दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, यूसी की तंजीम की जानिब से, टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब का कि उन्होंने हमारी कहने पर, हमारी दरख्वास्त पर इस जगह पर हमारी आबादी के लिए, हमारे इलाके के बच्चों के लिए यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स कायम किया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे कि हमारे नईम शेख कुरंगी टाउन चेयरमैन फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह कुरंगी टाउन को
मॉडल टाउन बनाएंगे। स्पोर्ट्स कोर्ट में स्कूल के तलबा और इलाके के नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात फराम की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। के आर्ट सीन गैलरी में 6 मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश सज गई। डॉट और लाइन जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं, मुसव्विरों ने अपनी सोच को रंगों के कैनवस पर बयान किया। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी मौजूद हैं हम आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर मूविंग डॉट के नाम से ग्रुप शो का इनेकाद किया गया है और बताया गया है किस तरह डॉट और लाइन हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं और अगर इन्हीं लाइनों और डॉट को अगर हम कुछ इसकी शक्ल देना चाहें तो वो क्या बन सकती है। यही मैसेज, यही सोच और मुआशरती रवैयों की अक्कासी करती इस एग्ज़िबिशन में कैनवस पर सजी तस्वीरें तख्लीक की हैं कौसर इकबाल साहब ने, जो कि लाहौर से ख़ुसूसी तौर पर कराची आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कराची में आपको वेलकम करते हैं। क्या कहेंगे आज के इस खूबसूरत एग्ज़िबिशन के बारे में? इतना खूबसूरत एग्ज़िबिशन की वजह तो कराची के अपने लोग हैं जो इतनी वेलकमिंग है और इतना ज़बरदस्त तरीके से आर्ट को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर लाइन या डॉट हम इसको इतनी अहमियत नहीं देते, मगर आज जो जितने भी मुसव्विर हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों से मुआशरती रवैयों की अक्कासी की है। आप क्या समझते हैं बतौर मुसव्विर और जो आपने तख्लीक किया है, डॉट और लाइंस ज़िंदगी पर असरअंदाज होती? आर्टिस्ट का रोल सिर्फ ये तो नहीं कि एक पेंटिंग सिर्फ कमरे की खूबसूरत, एक पर्दे की खूबसूरती के हद तक हो, उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है और उस मैसेज को कन्वे करने के लिए वो कैनवस के ऊपर वो जो भी उसका सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अपनी टाइम गुजारता है, मुख्तलिफ इमोशंस के साथ, मुख्तलिफ कतारसिस के साथ वो काम करता है और फिर वो जब सोसाइटी का पार्ट बन जाता है तो एक नरेशन बनता है। उस नरेशन में एक बड़ी मैसेज होती है, उस मैसेज को समझदार समझते हैं और अपने लिए अपनी सोच के साथ उसको निकालते हैं। बिल्कुल, पेंटिंग्स जहाँ पर खूबसूरती में इजाफा करती है, मगर ये बेजान तस्वीरें, बेरंग और ख़ूबसूरत रंगों से सजी बेजान तस्वीरें एक ज़िंदा जावेद मैसेज देती हैं जो समझने वालों के लिए है। मुसव्विर ने अपने फ़न की महारत के जौहर दिखाकर मुआशरती रवैयों की अक्कासी की है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना।